السلام علیکم اسٹوڈینٹس ہم بات کر رہے تھے ورک ڈن آن اور بائی آئیڈیل گیس. تو اس میں ہم نے جو ورک کی ویلیو نکالی تھی کہ جب ہم کسی تھرموڈائنمک سسٹم کی بات کرتے ہیں اور اس میں جو ورک ہوتا ہے وہ اگر ہم کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ انٹیگرل ہوتا ہے پریشر کا اور والیوم کا. یعنی ہم نے اس چیز کو جو ہے تھا وہ لاسٹ لیکچر کے اندر پروو کیا تھا. تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر سسٹم کے والیوم میں چینج آ رہی ہے تو پھر ورک ہوگا، لیکن اگر سسٹم کا جو والیوم ہے اس میں چینج نہیں آ رہی، یعنی ڈی وی ایکولز ٹو زیرو ہے، تو سسٹم کا جو ورک ہوگا وہ زیرو ہوگا. تو ورک کب پازیٹیو ہوگا کب نیگیٹیو ہوگا وہ ہم پریویس لیکچر کے اندر اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. تو آج ہم ایک اور چیز پروو کرنے جا رہے ہیں جو اسی ٹاپک کا ایک پارٹ ہے کہ جو پریشر فورس ہوتی ہے وہ نان کنزرویٹو ہوتی ہے. یعنی ہم نے اب پروو کرنا اس لیکچر میں کہ پریشر فورس از نان کنزرویٹو. اور کنزرویٹو فورس کیا ہوتی ہے؟ کنزرویٹو فورس وہ ہوتی ہے جس کا جو ورک ہوتا ہے وہ پاتھ پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. یعنی کنزرویٹو فورس ہم اسے کہیں گے جس کا ورک جو ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ آف پاتھ ہوتا ہے. تو چلیں ہم اپنے سسٹم کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو تھی وہ ہم کر چکے ہیں، آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا. تو آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پریشر فورس از اے نان کنزرویٹو فورس. پریشر فورس از اے نان کنزرویٹو فورس، اور نان کنزرویٹو وہ ہوتی ہے جس کا ورک جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ورک از ڈفرینٹ، ورک از ڈفرینٹ فار ڈفرینٹ پاتھس. تو اگر ڈفرینٹ پاتھ کے لیے ورک سیم ہو تو وہ کنزرویٹو فورس ہوگی، اور اگر ڈفرینٹ پاتھ کے لیے ڈفرینٹ ورک ہوگا تو وہ نان کنزرویٹو جو ہے وہ فورس ہوگی. تو اس کو جو ہے ہم تھرموڈائنمک سسٹم کے لیے جو ہے پروو کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہماری پریشر فورس ہے اٹ از اے نان کنزرویٹو فورس. تو اس کے لیے ہم اپنا ایک سسٹم جو ہے وہ لے رہے ہیں. تو سسٹم کی جو ویریبلز ہیں اس میں جب سسٹم انیشیل کنڈیشن کے اندر موجود ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کی جو ہے کچھ نہ کچھ والیوم کی ویلیو ہوگی، اور کچھ نہ کچھ جو ہے اس کی پریشر کی ویلیو ہوگی. تو جو اس کی ویلیو ہوگی پریشر کی اس کو ہم پی آئی کہیں گے، اور جو اس کی ویلیو ہوگی والیوم کی اس کو ہم وی آئی کہیں گے. یعنی جو والیوم کی ویلیو ہے دیٹ از وی آئی، اور جو پریشر کی ویلیو ہے دیٹ از پی آئی. اور اسی طرح جب ہم اس کو ایک پروسیس کے تھرو ایک فائنل کنڈیشن کے اوپر جائیں گے اور وہاں پر جو پریشر کی ویلیو ہوگی اس کو پی ایف کہہ دیں گے، اور جو والیوم کی ویلیو ہوگی اس کو ہم وی ایف کہہ دیں گے. تو اس کو جو ہے وہ ہم اپنی ڈائیگرام کے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو ڈائیگرام ہے
पीवी डायग्राम, ये हमारी है पीवी डायग्राम। तो इसमें जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वो पॉइंट ए है। तो यहाँ पे जो हमारे प्रेशर की वैल्यू है वो पी आई है, और इसी तरह जो वॉल्यूम की वैल्यू होगी वो वी आई होगी। तो ये हमारी जो वैल्यू होगी वी आई होगी। तो पहले हम ऐसे करते हैं कि अपने सिस्टम का वर्क कैलकुलेट करते हैं फॉर पाथ वन। और पाथ वन क्या है कि हम ए से बी और फिर बी से जो है वो डी की जानब जाते हैं। ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट पाथ बन जाता है। तो इसके दो हिस्से हैं। पहले हम वर्क जो है वो कैलकुलेट करेंगे, वर्क फॉर ए टू बी। फिर हम वर्क कैलकुलेट करेंगे वर्क फ्रॉम बी टू डी। तो जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा वी ए बी है, फ्रॉम ए टू बी जो वर्क है उसमें वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, यानी जो वॉल्यूम ए के ऊपर है वही वॉल्यूम जो है वो बी के ऊपर है। तो इसके अंदर जो हमारी डी वी की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। लिहाजा जो हमारा फार्मूला था वर्क कैलकुलेट करने का, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला ये था माइनस पी डी वी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर डी वी की वैल्यू हमारी ज़ीरो है तो वर्क जो होगा वो हमारा ज़ीरो होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रोसेस कैसे जो है वो अकर होगा। तो यानी प्रेशर उसका बढ़े और वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो इसमें हम ये करते हैं कि हमारा जो कंटेनर होगा, लेट्स सपोज कि ये हमारा जो है वो कंटेनर है, इसके अंदर हमने गैस को इंक्लोज किया हुआ है और ये पिस्टन है दैट इज़ मूवेबल। हम क्या करते हैं, इसको इसकी जो बॉटम है उससे हीट सप्लाई करते हैं। तो इससे ये जो पिस्टन होगा ये आउटवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा जब गैस के मालिक्यूल उसके साथ टकराएंगे। लेकिन हमने सिस्टम कुछ इस तरह से किया है कि जैसे जितना ही गैस का प्रेशर बढ़ता है हम ऊपर जो है इसका प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। यानी जो यहाँ से इंक्रीमेंट होगी उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं प्रेशर को ऐड करके, जिसकी वजह से हमारी गैस जो है वो एक्सपैंड नहीं होती और हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है और डीवी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो रहती है। तो इस तरह जो है वो हम जब अपनी गैस को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे इस स्टेट में, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट रहेगा और वर्क नहीं होगा। तो अब हम बी से डी की तरफ जाते हैं। तो जब हम बी से डी की तरफ जाएंगे तो इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है कि प्रेशर जो है वो हमारा कांस्टेंट है और जो वॉल्यूम है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें ये होगा कि जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई जैसे जैसे आप हीट सप्लाई करेंगे, आप जैसे मैंने प्रीवियसली किया है कि हम उसके अंदर उसके ऊपर जो वेट था वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि हमारा जो सिस्टम होगा, ये फर्ज करें हमारा सिस्टम है, हम इसको हीट जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम जो है जो उसका वेट पहले था यहाँ पे उतना ही वेट रखते हैं और कोई एडिशनल वेट जो है वो इसमें ऐड नहीं करते, जिसकी वजह से इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन इंटरनल प्रेशर जो है गैस का वो इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो पिस्टन है ये आउटवर्ड मूव कर जाता है, यानी उसका वॉल्यूम जो है वो वी आई से वी एफ हो जाता है, यानी वी आई से वी एफ हो जाता है। तो इस तरह हमारा जो वर्क होगा वो इस हिस्से में होगा और वो हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग। और फार्मूला हमारा क्या होगा कि वर्क इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। तो यहाँ पे हम हमारी जो वॉल्यूम की चेंज आ रही है लेकिन ये वर्क होगा फ्रॉम बी टू डी। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम वी आई टू वी एफ। तो इस तरह इस हिस्से का जो वर्क होगा इट विल बी ज़ीरो और ये जो डब्ल्यू होगा ये इस हिस्से का वर्क होगा। तो इसी तरह हम जो है वो जो हमारा सेकंड पाथ है उसका वर्क जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो हमारा सेकंड पाथ है
वो फ्रॉम ए टू सी और फिर सी टू डी है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें भी दो स्टेप्स हैं, पहले हमने इसका वर्क कैलकुलेट करना है, फिर हमने इसका वर्क कैलकुलेट करना है। तो इसमें वही कंडीशन है कि इसमें हमने गैस को इस तरह हीट सप्लाई करनी है कि उसका प्रेशर कांस्टेंट रहे जिस तरह यहाँ पे था, और उसके वॉल्यूम में जो है वो चेंज आए। लिहाजा यहाँ पर जो है वो वर्क होगा, क्योंकि यहाँ पे डी वी जो है वो ज़ीरो नहीं है। लेकिन जो हमारा ये वाला हिस्सा है, इसमें जो वॉल्यूम यहाँ पे है वही वॉल्यूम यहाँ पे है, और ये भी वैसे प्रोसेस होगा जैसे हमने यहाँ पे किया था कि जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर जितना प्रेशर गैस का इंक्रीज़ होना है हम उतना जो है वो एक्सटर्नली उसमें ऐड करते जाते हैं ताकि पिस्टन जो है वो मूव ना कर सके। तो इस हिस्से में जो हमारी डी वी की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी, लिहाजा वर्क फ्रॉम सी टू डी विल आल्सो बी ज़ीरो। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो हमने वर्क जो हमारा फर्स्ट पाथ के लिए था वो हमने देखा, वो हमारा होगा फिर वर्क फ्रॉम ए टू बी और वर्क फ्रॉम बी टू डी। और अभी हमने ये देखा था कि जो वर्क हमारा है ए टू बी वो ज़ीरो था, क्योंकि इसके लिए जो हमारी डी वी की वैल्यू थी वो ज़ीरो थी, वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे। और बी डी का जो है वो हम अपना जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग वर्क कैलकुलेट करेंगे। और इसमें हमारी जो वॉल्यूम की चेंज आ रही है फ्रॉम वी आई टू वी एफ आ रही है, लिहाजा हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम वी आई टू वी एफ, और फाइनली हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो ये आ जाएगा। तो ये हमारा जो है वो रिज़ल्ट होगा फॉर फर्स्ट पाथ, जिसको हमने डब्ल्यू वन कहा है। तो अब हम सेकंड जो पाथ है उसके लिए वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो वो हमारा जो पाथ है वो है ए सी डी, पाथ टू जो है। तो इसमें भी हमने जो है वो वर्क जैसे पहले कैलकुलेट किया है वैसे ही वर्क जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें ये देखें कि जब हमने बात की थी ए टू सी की, तो उसमें ये था कि हमारा जो वर्क है इस पाथ के लिए उसमें गैस जो थी वो अगर हम उसको दोबारा ड्रा करें तो हमें ये लाइन जो थी वो मिल रही थी, यानी कि यहाँ पर जो था वो वी आई उसका वॉल्यूम था, यहाँ पर जो था उसका वॉल्यूम वी एफ था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट सी था। तो इसमें वॉल्यूम की चेंज है वो आ रही है, लिहाजा इसमें जो है वो वर्क डन होगा, और उसको हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। और जब हम सी से डी की तरफ जाते थे, यानी अगर सी ये है और डी यहाँ पे है, तो यहाँ पर जो है वो डी वी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो लिहाजा यहाँ पर जो है उसका वर्क ज़ीरो है। तो अब हम जो ये वाला है इसमें भी वैल्यू जो है वो हमारी वी आई टू वी एफ चेंज हो रही है, और हम जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है। तो दोनों चीज़ों को देखते हुए हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि डब्ल्यू वन इज़ नॉट इक्वल टू डब्ल्यू टू, क्योंकि जब हमने पाथ वन का वर्क कैलकुलेट किया था तो वो आया था माइनस पी एफ वी एफ माइनस वी आई। तो इसमें ये देखें कि इसके डिफरेंस की वजह से हमारे जो वर्क्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो अब हमने ये देख लिया कि हमारा जो फर्स्ट पाथ के लिए वर्क है वो सेकंड पाथ के वर्क के बराबर नहीं है, यानी हमारा जो वर्क है वो पाथ डिपेंडेंट है। तो अगर वर्क पाथ डिपेंडेंट हो तो हम कहेंगे कि हमारी जो फोर्स ये वर्क कर रही है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इससे हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि प्रेशर फोर्स इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। प्रेशर फोर्स इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
امید ہے اسٹوڈنٹ سمجھ آئی ہوگا، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہم ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔